بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں اور والدین حضرات، آج ہم 8ویں جماعت کی جنرل سائنسز مضمون کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اس مضمون میں کل 19 اسباق دیے ہوئے ہیں۔ پہلی مکات یعنی فرسٹ ٹرم میں ہم 1 سے لے کر 9 سبق کا مطالعہ کریں گے اور سیکنڈ ٹرم میں ہم 10 سے لے کر 19واں سبق تک کا مطالعہ کریں گے۔ سبق نمبر 1 ہے جانداروں کی دنیا اور خردبینی جانداروں کی جماعت بندی۔ انگریزی میں اسے کہیں گے The Living World and the Classification of Microbes۔ لیونگ ورلڈ یعنی جانداروں کی دنیا، کلاسیفیکیشن یعنی جماعت بندی، جماعتوں میں بانٹنا، اینڈ مائکروبس یعنی خردبینی جاندار، ایسے جاندار جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے انہیں واضح طور سے نہیں دیکھ سکتے۔ پچھلی جماعت میں آپ نے جانداروں کی دنیا یہ سبق پڑھا، جانداروں میں ہونے والی نشو و نما اور دیگر ان کے حیاتی افعال انجام دیتا ہے، اس کے متعلق آپ نے معلومات حاصل کی ہے۔ یہاں ہم جانداروں کی جماعت بندی کیسے کیے یہ دیکھیں گے۔ تو جانداروں کی جماعت بندی یعنی کلاسیفیکیشن آف لیونگ آرگنیزم اور مائکرو آرگنیزم یہ کیسے انجام پائی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 1735 میں سائنسداں کارل لینیس نے اپنا نظریہ پیش کیا جانداروں کی جماعت بندی کے تعلق سے۔ کارل لینیس نے اس نظریے میں کیا بتایا؟ کارل لینیس نے صرف 2 گروہ میں جانداروں کو بانٹا۔ وہ 2 گروہ کون سے؟ ایک نباتات یعنی پلانٹ، دوسرا حیوانات یعنی اینیمل اینڈ پلانٹ۔ یعنی ہمیں یہ پتا ہے کہ جاندار کیسے ہیں۔ ہم عام طور پہ جاندار کو 2 قسموں میں دیکھتے ہیں۔ ایک جاندار جو حرکت کرتے ہیں انہیں ہم حیوانات یا جانور کہتے ہیں، اس میں انسان کا بھی شمار ہے۔ اور دوسری قسم ایسے جاندار جو حرکت نہیں کرتے، اپنی جگہ پہ اسٹیبل ہوتے ہیں، کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، غیر متحرک ہوتے ہیں، انہیں ہم نباتات کہتے ہیں یا ویجیٹیبلز کہتے ہیں، پلانٹ کہتے ہیں۔ اس طرح سے کارل لینیس نے ان کو 2 گروہ میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد سن 1866 میں ہیکلے نامی سائنسداں نے جانداروں کو 3 گروپ میں تقسیم کیا۔ اس سے پہلے کارل لینیس نے 2 گروپ میں تقسیم کیا تھا، اب ہیکلے نے انہیں 3 گروہ میں تقسیم کیا۔ یہ 3 گروہ بالترتیب ہے پروٹسٹا، نباتات اور حیوانات۔ پروٹسٹا کو انگریزی میں ہم پروٹسٹا ہی کہیں گے، نباتات کو پلانٹس اور حیوانات کو اینیملز کہتے ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ سن 1866 کے بعد کا عرصہ، سن 1866 کے بعد سن 1925 میں 1925 میں سائنٹسٹ چیٹن نامی سائنسداں نے جانداروں کو 2 گروہ میں تقسیم کیا۔ یہ 2 گروہ کون سے؟ تو پہلا گروہ ایسے جاندار جن کے خلیے کے اندر مرکزہ ہوتا ہے، تو انہیں کہتے ہیں واضح مرکزہ بردار، یہ پہلا گروپ ہوا۔ اور دوسرا گروپ ایسے جاندار جن کے خلیے کے اندر مرکزہ نہیں پایا جاتا، ایسے جانداروں کے گروہ کو غیر واضح مرکزہ بردار کے نام سے انہوں نے سامنے لایا۔ تو اس طرح سے انہوں نے چیٹن نامی سائنسداں نے جانداروں کو 2 گروہ میں تقسیم کیا، ایک واضح مرکزہ بردار اور دوسرا غیر واضح مرکزہ بردار۔ انگریزی میں انہیں پروکیریوٹ اور یوکیریوٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جن میں مرکزہ نہیں ہوتا انہیں پروکیریوٹس، اور جن میں مرکزہ پایا جاتا ہے انہیں یوکیریوٹس اور یوکیریوٹک سیل۔ اوکے، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اور کیا پیشکش سامنے آئی ہے۔ سن 1938 میں کاپلینڈ نامی ماہرین علم حیاتیات نے اپنا نظریہ سامنے لایا۔ اب کاپلینڈ نے کیا سامنے لایا ہے یہ ہمیں جاننا ہے۔ تو کاپلینڈ نے جانداروں کو 4 گروہ میں تقسیم کیا۔ اب یہ 4 گروہ کون سے؟ تو پہلا گروہ مونیرا،
दूसरा ग्रोह प्रोटिस्टा, तीसरा ग्रोह नबातात और चौथा ग्रोह हैवानात। इस तरह से कोपलैंड ने जानदारों को 4 ग्रोह में बांट दिया, तकसीम की। अब हम देखेंगे सन 1969 में आर.एच. व्हिटकर ने अपना नजरिया सामने लाया। आर.एच. व्हिटकर इल्म हयातियात के माहिरों में सबसे खास माने जाते हैं। माहिरीन इल्म हयातियात में जमात बंदी की शुरुआत का बुनियादी तरीका आर.एच. व्हिटकर के तरीके को माना जाता है और पूरे आलम में ये तरीका आज भी इस्तेमाल किया जाता है और इसी पे ही अमल पैरा होते हैं। ठीक है, तो ये 5 जमातें मैं आपको बताता हूँ कि 5 ग्रोह में, 5 जमातों में किस तरह से आर.एच. व्हिटकर ने जानदारों को तकसीम किया, जमात बंदी की। पहले हम देखेंगे कि आर.एच. व्हिटकर ने जानदारों की जमात बंदी में बताया कि पहला जो आलम है, पहला जो अकलीम है, पहला जो ग्रोह है उसको बताया है मोनेरा। दूसरे नंबर पे आता है आलम प्रोटिस्टा, तीसरे नंबर पे आता है आलम फकून, चौथे नंबर पे आता है आलम नबातात और 5वें नंबर पे आता है आलम हैवानात। इस तरह से 5 आलमी निज़ाम में जानदारों को तकसीम किया गया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे जानदारों का जो पहला आलमी निज़ाम, पहला आलम, 5 आलमी निज़ाम आर.एच. व्हिटकर ने हमें बताया, उसमें से पहला आलम जिसको हम मोनेरा कहते हैं। अब मोनेरा में क्या क्या खुसूसियात होंगी जिसकी बिना पर ये जमात, ये आलम बना है, तकमील पाया है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी ग्रोह को बनाने के लिए कौन कौन सी खुसूसियात पर नज़र डालनी होती है। ठीक है, तो खुसूसियात हम देखते हैं। पहली खुसूसियात जिसकी बिना पर जानदार की जमातबंदी की जाती है। पहला, ये सब आर.एच. व्हिटकर के बताए गए कि जानदारों के जिस्म में किस किस्म के खलिए पाए जाते हैं। ये पहले वाज़ेह मरकज़ बरदार, गैर वाज़ेह मरकज़। इसमें बाकी जो साइंसदान ने अपने नज़रियात पेश किए गए हैं उसका भी यूज़ हो जाता है। वाज़ेह मरकज़ बरदार खलिया और गैर वाज़ेह मरकज़ बरदार खलिया। और दूसरी बात इसमें देखा जाता है कि जानदार का जिस्म कैसा है, सादा है या पेचीदा है, एक ही खलिए से पूरा जिस्म बना है या बहुत सारे खलिए इसके अंदर मौजूद हैं, जिसे हम कहते हैं यकखलवी जानदार या कसीर खलवी जानदार, सिंगल सेलुलर एनिमल और मल्टी सेलुलर एनिमल। अब तीसरी बात यह है कि तग़ज़िये का तरीका कैसे है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जानदार क्या खाता है, अपनी ग़िज़ा के तौर पे किन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। जैसे ये ग़िज़ा अपने जिस्म में खुद तैयार करता है, अपने जिस्म के अंदर खुद तैयार करता है, बाहर से कहीं नहीं। तो ऐसे जानदार को खुद कफील जानदार कहा गया, ऐसे जानदार को खुद कफील जानदार कहा गया। और ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे पर मुनहसर होते हैं, खाना या ग़िज़ा बनाकर खाते हैं, ऐसे जानदार को हम गैर खुद कफील जानदार कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। पहला ऑटोट्रॉप्स और दूसरा हेट्रोट्रॉप्स, खुद कफील और गैर खुद कफील जानदार। चौथी खुसूसियात ये कि ऐसे जानदार जिनका तर्ज ज़िंदगी मुख्तलिफ है, तर्ज ज़िंदगी यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, यानी ये किस तरह से ग़िज़ा को हासिल करते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ग़िज़ा कैसे हासिल करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि घर में अगर रोटियां पड़ी रहे ज़्यादा दिनों तक तो उसे फफूंद लग जाती है। क्या लग जाती है? फफूंद, जिसे फंजाई या फंगाई कहते हैं अंग्रेज़ी में। ये भी जानदारों का आलम में से शुमार किया गया है, यानी ये मुर्दा जो ग़िज़ाई चीज़ा है उस पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करती है।
दूसरी तरह हैवानात गोश्त के लिए डिपेंड है यानी जानवरों, और सब्जियों पे डिपेंड है यानी प्लांट और वेजिटेबल्स पे डिपेंड है, ठीक है। उसी तरह कोई जानदार जैसे हम लेते हैं मच्छर, लीक, जोक, गोचिड़, ऐसे कई जानदार हैं जो अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए दूसरे जानदार के ऊपर चिपके रहते हैं, मुनसर होते हैं, उनका खून चूसते हैं, या नबातात में अमर बेल हम कहेंगे, वो दूसरे पेड़ को लिपट कर उसका रस या उसके अंदर की ग़िज़ाई मादे अपने अंदर जज्ब करती है। ऐसे इस तरह से इनका तर्ज ज़िंदगी होता है, लाइफस्टाइल होता है। इस बिना पर भी इनकी जमात बंदी में इन्हें शुमार किया जाता है, इन पॉइंट्स को। अगला यानी 5वां पॉइंट्स हम देखेंगे, नस्ली इर्तिकाई ताल्लुक यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, यानी ये जानदारों का ताल्लुक कहाँ से वजूद में आया। ये यकल्वी से कसीर खल्वी बने, गैर वाज़े मरकज़ा बरदार से वाज़े मरकज़ा बरदार हो गए। इस तरह से इनका मुशाहिदा किया जाता है और इस बिना पर इनकी जमात बंदी की जाती है। ये 5 जो अहम पॉइंट से इस बिना पर जमात बंदी की जाती है। हम मुख्तसर में मालूमात हासिल करेंगे 5 आलम की, 5 अक़लीम की, जिसमें हम शुरुआत करते हैं मोनेरा से। मैंने आपको बताया मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया का शुमार होता है। बैक्टीरिया जो बहुत ही मुहीन होते हैं, बारीक होते हैं, इनकी जसामत बहुत कम होती है, ठीक है। इनके अंदर मरकज़ा नहीं पाया जाता, ये गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खलिया रखते हैं, गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खलिया रखते हैं, या कल्बी जानदार होते हैं। बहुत से जो बैक्टीरिया होते हैं ये खुद कफील होते हैं, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ग़िज़ा के लिए दूसरे पर मुनसर होते हैं, उन्हें गैर कफील कहते हैं, ठीक है। और तीसरी खुसूसियत ये हम कहेंगे कि ये गैर मरकज़ा बरदार है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें झिल्लीदार मरकज़ा या खलवी हैवान से नहीं पाए जाते, ठीक है। ये खुसूसियत हुई हमारे आलम मोनेरा की। दूसरा आलम प्रोटिस्टा के अंदर हम देखेंगे ऐसे जानदार जो मुहीन है, बारीक है, मगर इनके अंदर मरकज़ा पाया जाता है। इसको इब्तदाई हैवान भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो हरकत करते हैं और अपनी ग़िज़ा खुद भी हासिल करते हैं, तैयार करते हैं। जैसे कुछ यूग्लिना हम कहेंगे, इनके अंदर सब्ज़ मायना भी होता है, कुछ जानदार। इसकी क्या खुसूसियात है, आलम प्रोटिस्टा की क्या खुसूसियात में जो जानदार है वो यकखलवी होते हैं। कैसे होते हैं? इनके जिस्म से एक ही खलिए से बना होता है, सारे जिस्म के अफ़ाल अंजाम एक खलिया देता है। फिर दूसरी खुसूसियत ये इसकी कि हरकत के लिए काज़िब पैर या हदबे या सूतिये होते हैं, यानी हरकत करने के लिए इनकी जिस्म के ऊपर बारीक बाल नुमा, धागे नुमा ऐसे शक्ल होते हैं, और उन धागों से इस तरह से वो हरकत करते हुए आगे बढ़ते हैं या अपनी ग़िज़ा को पकड़कर अंदर जज्ब कर लेते हैं। इस तरह के ये बाल जैसे हदबे इनमें होते हैं, इससे वो हरकत करते हैं। मुख्तलिफ सतहों पर होते हैं जिस्म की, धागे या बाल जैसे शक्ल में नज़र आती है उनके जिस्म के बाहर, ठीक है। ये इससे अपने हरकत अंजाम देते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। तीसरा पॉइंट हम इनका देखेंगे कि खुद कफील होते हैं, जैसे यूग्लिना खुद कफील होना, यानी इनके जिस्म में सब्ज़ मायना है, क्लोरोप्लास्ट है, तो ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर लेते हैं, ठीक है, अपने जिस्म के अंदर, इसलिए खुद कफील है। जैसे यूग्लिना वॉलवॉक्स के खलियात में सब्ज़ मायना होता है। गैर कफील कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पे अमीबा, पैरामेशियम, प्लाज्मोडियम वगैरह। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। तीसरा आलम हबून यानी फंजाई।
आलम फफूंद आपने देखे होंगे, रोटी के ऊपर जो सफ़ेदी आ जाती है वो एक तरह की, रोटी या ब्रेड के ऊपर वो एक तरह की फफूंद है। बारिश के मौसम में लकड़ियों के ऊपर कुछ छतरी नुमा सी शक्ल की उग जाती है, जिसे हम मशरूम या कुत्ते की झोपड़ी से मशहूर है, ठीक है, वो भी एक तरह की फफूंद है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फफूंदें होती है। जल्दी अमराज जो होते हैं वो भी फफूंद के ज़रिए से होते हैं। अब फफूंद की क्या खुसूसियात है, तो फफूंद की खुसूसियात हम देखेंगे कि आलम फफूंद में गैर कफील है, गैर तालीफ़ी है, यानी अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते हैं, वाज़े मरकज़ा बरदार जानदार शामिल है, इनके खलिए में मरकज़ा होता है। अक्सर फफूंद गंदखोर होते हैं। गंदखोर यानी ऐसे ग़िज़ाई मादे जो सड़ जाते हैं, हमारा खाना बासी हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसे गंदखोर मादे कहते हैं। उस पर ये आते हैं और अपनी ग़िज़ा हासिल करके अपनी तादाद बढ़ाते हैं। जब वो तादाद बढ़ाते हैं तो हमें नज़र आते हैं, नहीं तो ये बहुत मुहीन बारीक होते हैं। दूसरी बात, ये सड़े गले कार्बनी मादों पर ज़िंदा रहते हैं। फफूंद की फलवी दीवार काइटिन नामी पेचीदा निशास्ते से बनी होती है। काइटिन एक तरह का कीमियाई मादा है, केमिकल है, जो निशास्ते में शुमार होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट में शुमार होता है। ग्लूकोज की तरह, ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट में शामिल होता है। काइटिन एक परत बना लेता है इनके जिस्मों का, एक दिखाई तो ऐसे देती है जैसे कांच या प्लास्टिक की तरह, ठीक है, बारीक, बहुत बारीक मुहीन होती है, ठीक है, काइटिन। तो ये काइटिन की परत से इनका जिस्म ढका होता है, ठीक है। आगे इनके बारे में हम देखते हैं कि कुछ फफूंद रेशेदार यानी लंबी धागे नुमा होती है। इनके खलिया माया में लातादाद मरकज़ें पाए जाते हैं, एक से ज़ायद मरकज़ें इनमें पाए जाते हैं। फफूंद तखमीर यानी ग़िज़ा को सड़ाकर उसकी ग़िज़ाइयत बढ़ा देना, जैसे अचार में कैरी को सड़ाते हैं और उसकी ग़िज़ाइयत अचार के तौर पे हमें लजीज हो जाती है और अच्छी हो जाती है, ठीक है। म्यूकर एस्परजिलस मकई के भुट्टे पर ये लगती है और तखमीर में हम पाउडर यानी ईस्ट डालते हैं। उसी तरह पेनिसिलियम कुकुरमुटा सेमारो मशरूम तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखें विटकर के बाद जमात बंदी की कई तरीके राइज हुए, लेकिन आज भी साइंसदान विटकर के ही 5 आलमी निज़ाम या अक़लीमी निज़ाम की जमात बंदी के तरीके को मियार मानते हैं। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।